Okay, I think I'm audible to all of you. I'll start today's session. And I'll start first by a brief introduction about myself, and then I'll go on to share my journey of UPSC CSE, and I'll address few of the important points जो most of the aspirants के doubts होते हैं, which what I followed during my preparation, and if any other doubt is there, then we can discuss in the end after I complete my part. जो भी मुझे share करना है, then you can ask your questions. I'll address that. So I'll start with a brief introduction about myself. My name is Anamika Pandey, and I have secured AIR 579 in UPSC CSE 2024. This was my third attempt, second means, and first interview, and I was lucky enough to find my name in the list. And so I'll start from the very beginning when I wrote my first attempt. So in 2022, I wrote my first attempt where I couldn't clear prelims itself. और वो बहुत ही कम margin से it was 5-6 marks I couldn't clear prelims in my first attempt. And after that 2023 I was lucky enough to clear the prelims, but I failed mains, that because of certain personal circumstances, but yet I was not able to clear mains, and that is the only point. And after not when I couldn't clear mains, then again I prepared, and then I wrote 2024 prelims. Then I cleared all the stages of the exam. So this was my brief journey in the civil services examination, and the credit for my success I would like to give to my family, my friends, especially my parents, who has always been there in this long journey of UPSC, and उनका support इतना अच्छा था that I was able to carry forward. So I think this was the journey of civil services, which was 4 long years. Now I'll start with the preparation strategy, like how I started my preparation and what was motivation and everything. So I've done BTech. So during my final year of engineering, I decided to appear for civil services, and since then I've been preparing. और सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग इनिशियली प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो आई वेंट थ्रू सो मेनी टॉपर टॉक्स एंड वॉट एवर ऑल ऑफ अस डू, सबसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एंड देन आई सॉ द सिलेबस, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, एवरीथिंग, बिकॉज देर वॉज नो एज सच पर्सनल गाइडेंस फॉर मी. सो जो भी था इंटरनेट के थ्रू मैंने सब कुछ इंफॉर्मेशन गैदर की, एंड देन आई डिसाइडेड. और initially I started on my own, but after a certain point of time I felt like I need to I need to have a proper guidance in order to have a proper preparation of the exam. तो इसलिए मैंने decide किया था that I need a foundation course. इसमें पहले ही disclaimer है that there are people who are preparing on themselves. They do not need any coaching and still they are clearing, getting good ranks. So coaching का मैं पहले clear करती हूँ that it is very personal choice of an individual. अगर आपको लगता है कि आपको coaching करनी चाहिए, then it's good. And if you think you can do on your own, then there's no issue in that also. People are clearing. But in my case, I thought that I need a foundation course, because since I was from an engineering background, और यूपीएससी का सिलेबस सबको पता है इतना वास्ट है कि हम सब उसमें खो भी सकते हैं. सो इन ऑर्डर टू हैव दैट फोकस्ड गाइडेंस एंड फोकस्ड approach, I decided to take a coaching, and then I joined Next IS. I did foundation course from there. तो जो हमारा ये प्रिपरेशन होता है कि प्रीलिम्स का अलग करना है, मेंस का अलग करना है, दोनों का साथ में करना है, ये भी एक रीजन था फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करने का मेरा, दैट आई प्रिपेयर्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर, प्रीलिम्स एंड मेंस. तो I did my foundation course, and in 2021 I joined, 2022 I completed, and I appeared for the prelims as I told, and I couldn't clear prelims. Then after doing my foundation, so my foundation, I'm talking about my foundation because my sources are related to that. For instance, there are certain subjects that that are very basic, that all of us do from the standard sources, but then there are few subjects that I did from my class notes only. So in order to tell the book list and the resources that I follow, I have to tell you that about that foundation course that I did.
सो प्रीलिम्स का मेंस दोनों मैंने साथ में प्रिपेयर किया था. एंड प्रीलिम्स में what I so initially it's not segregated, but जब मेरा first prelims fail हुआ, then I started focusing on the subjects, the basic subjects more. For instance, prelims के लिए all of us know कि 7 subjects होते हैं which are very, very very important, that are polity, economy, geography, history, environment, science and tech, and international relations, mostly related to current affairs. So what I did was, prelims में first I read whatever I was taught in the classes, and then after I went through the sources, basic sources, which are polity के लिए I did Lakshmikant, geography के लिए it's 11th 12th NCERT, which is very very important. Then हिस्ट्री के लिए आई डिड स्पेक्ट्रम, एंशियंट एंड मिडिवल के लिए आई डिड ओल्ड एनसीईआरटी, and also my class notes. And environment science, both of them I did class notes plus the current affairs. So current affairs part I'll come later. Right now I'll talk about the basic static subjects that were there. So these were the sources for my prelims. Now the important part is, I read all the sources, but why I was not able to clear first prelims, but I was able to clear 2023 ka prelims, which all of us know was very tough. So the main thing behind this was, I made sure कि मेरा foundation बहुत strong हो. I revised a lot. I consolidated all of my notes and everything as much as I can. And the most important part was PYQ, which I missed in my first attempt. तो अगर इस पूरे सेशन में से सबसे पहली इंपॉर्टेंट लर्निंग अगर हमें कोई लेनी है, सो दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. तो अभी तक I made a strong foundation. I did all the basic subjects once, and then I did the revision and everything. These things I did in my first attempt as well. But what I left was, after doing my the foundation in the first attempt, I used to give test. एंड PYQ भी मैंने कैसे किया था, आई यूज टू सॉल्व PYQs. जो गलत हुआ उसका आंसर देख लिया, जो सही हुआ तो सही था. सो आई फील कॉन्फिडेंट कि अच्छा चलो ये सही हो गया, और जो गलत हो रहा था उसका आंसर देख लेती थी मैं. फिर आई यूज टू सॉल्व टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज में बस मार्क्स चेक करती थी. इफ मार्क्स वर लेस, देन व्हाट आई यूज टू डू, अगेन आई यूज टू गो बैक टू द सब्जेक्ट एंड स्टडी, और आई यूज टू चेक द आंसर, एंड देन आई ट्राई टू रिमेम्बर कि चलो अच्छा इस टॉप मतलब ये फैक्ट था जो मुझे याद रखना है. But that was, very shallow preparation. This I understood when before my second attempt, when I failed prelims. उस टाइम पे मैंने PYQ की एनालिसिस करना शुरू किया. तो उसमें मैंने पहले अपना फाउंडेशन तो पढ़ा ही हुआ था. मैंने पहले अपने नोट्स को कंसोलिडेट किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, एंड देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग PYQs, एंड आई स्टार्टेड काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यूपीएससी इज आस्किंग, और उसमें उसके पीछे क्या पैटर्न है, या फिर कौन से थीम्स है जो बार बार पूछ रही है. मतलब इफ आई एम स्टडिंग एंशियंट हिस्ट्री, तो आई हैव टू मेक श्योर कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज समथिंग दैट आई हैव टू डू इन डेप्थ, एंड आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस इट एट ऑल. मैं सारे टॉपिक्स को एक ही एक ही फोकस के साथ नहीं कर सकती. देयर आर सर्टेन टॉपिक्स विच नीड्स मोर अटेंशन. तो पहले मैंने ये चीज समझी. दूसरी, और मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समझा, लाइक देयर आर थिंग्स की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है, या फिर फैक्चुअल स्टेटमेंट्स है. तो इसमें कैसे देयर आर सम पैटर्न्स दैट विल ऑब्जर्व व्हेन यू डू इन डिटेल PYQ एनालिसिस. तो ये प्रीलिम्स के लिए मैं जो सेकेंड प्रीलिम्स मेरा था उसके पहले मैंने ये सारी चीजें की. एंड ऑल्सो CSAT के लिए भी, CSAT के लिए ऑल्सो व्हाट आई डिड वाज, I did the topic wise questions. तो पहले मैंने टॉपिक वाइज अपने खुद नोट्स बनाए. देयर आर सर्टेन फिक्स फॉर्मूलाज और थिंग्स दैट यू हैव टू डू. तो पहले टॉपिक वाइज कुछ लेक्चर्स करके आई मेड नोट्स. आई सॉल्व्ड मेनी क्वेश्चंस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक. जैसे सपोज परसेंटेज पे क्वेश्चन है या नंबर सिस्टम पे है, तो उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए. एंड देन आई सॉल्व द PYQs. And then I tried to solve different papers from different coaching institutes. तो ऐसे मैंने CSAT के लिए भी सेकेंड अटेम्प्ट में और ज्यादा प्रिपरेशन की, बिकॉज आई डे बाय डे आई अंडरस्टूड कि CSAT इज गेटिंग टफर. तो दिस वे आई प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स.
And this has been my strategy in both the attempts, where in my 2023 I cleared prelims, and 2024 I cleared forest ka prelims as well. I got 104 in prelims. So but my strategy was same. What I did: strong foundation, then consolidating my notes, and then revising that notes again and again, doing the in-depth analysis of previous year questions, and also writing the test series. At least I made sure that at least I write 40 to 50 test series in prelims, and that too of different coaching institutes. So this is how I prepared for prelims in both my attempts. And CSAT also, I told the topic wise questions. First I saw topic wise questions, then I did PYQs, and then I solved full length papers of different institutes in order to have that, in order to deal with the uncertainty or the random papers that UPSC gives. So this way I prepared for prelims. And the current affairs part, so initially I used to do daily newspaper. Initially I used to do, but later I shifted to the monthly magazines when my foundation became strong enough. And after these monthly magazines, in my third attempt, that is the attempt which I cleared, I majorly shifted to PT only. So PT 365 has been a very good source for me. The only reason was it was subject wise. And if your foundation is strong enough, you'll be able to understand things from the PT 365 also. तो इससे मैंने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया, एंड देन आई क्लियर प्रीलिम्स. This was my strategy for prelims, both for GS, CSAT, and current affairs. Then if I come to mains, so mains mein, the most important part is this optional, because optional, ethics, and AC are something that make or break your mains marks. So how did I choose my optional? मतलब अभी बहुत लोगों को डाउट होता है कि कौन सा ऑप्शनल ले, एंड उस ऑप्शनल में कैसे चूज करें उसको, हाउ टू which institute or whatever guide sources one has to follow in order to get good marks and all. So I'll start with the subject that why I chose anthropology. My optional was anthropology, and this year, like in my 2023 first mains, I scored 216 in optional, but in this year's optional I scored 280 marks. So it's a decent score. And so I'll start by discussing how did I choose anthropology as my optional. So as I said, during my college only I decided to prepare for UPSC. So I started to do research on the subjects, optional subjects, which I wanted to choose. So I saw many toppers video, and that time only Shreyans Kumar sir, Akshat Jain sir, and there were many other toppers as well who took anthropology as their optional. So I got to know about this subject then only, and then I researched about this subject ki syllabus kya hai, and क्या पढ़ना होता है इसमें, what are the questions that are being asked. So this thing I did in during college itself. तो उस टाइम पे I found कि मतलब in general, I found it very interesting when I read these fossils names, and when I read the tribal part. So I felt this very interesting. This was the one reason. First reason was this optional is being taken by a lot of toppers. And then I went through the syllabus and PYQs, and I found that syllabus was very interesting, and I wanted to read that. And then what I did was I went through the PYQs, and I saw there are so many, I did the mapping. तो syllabus में ऐसे बहुत सारे points थे जो PYQs में पूछे जाते थे. So that way I found very interesting. और ये भी लगा कि अच्छा, मतलब ऐसा है कि इसको हम prepare करेंगे. So there, syllabus is also fixed, and questions are also being asked mostly from the syllabus itself. तो ये दोनों, और उसके अलावा गाइडेंस भी बहुत सारी अवेलेबल थी व्हेन आई सर्च फॉर लाइक व्हाट हाउ डू आई प्रिपेयर माय ऑप्शन. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ गाइडेंस अवेलेबल एज वेल. तो इन फैक्टर्स के वजह से आई डिसाइडेड टू टेक एंथ्रोपोलॉजी एज माय ऑप्शनल, एंड आई वाज एबल टू स्कोर good enough. So I think my decision was right only, and I never felt bored while studying my optional.
So this was my strategy for optional. uh, then in mains you have answer writing part, like in you have 4 GS papers, one essay paper, and 2 optional papers. So in the GS papers, what I did was, in mains you have all you have what you all have to do is answer writing. This is a very important part, and all of us are very confused and very scared of this part sometimes, कि मतलब बहुत सारा पढ़ लेते हैं लेकिन जब पेन हाथ में आती है कि लिखना है तो वी ऑल गो ब्लैंक कि कैसे लिखें एंड एवरीथिंग। तो मतलब ऐसा लगता है कि और पढ़ लें, याद नहीं आ रहा कुछ, अभी अभी इतना पढ़ा नहीं है कि हम लिख पाए, दीज थिंग्स हैपन। बट देन initially this hesitation was in me also, but later when I had to write my first main, so before mains also I did certain answer writing, but not that you know उतना अच्छा मैंने किया नहीं जितना अच्छा करना चाहिए था। तो मेरा एक्चुअल में जो आंसर राइटिंग मैंने किया था वो मैंने फर्स्ट मीन्स के पहले किया था, विच इज नॉट अ राइट स्ट्रेटेजी। वी शुड डू आंसर राइटिंग बिफोर December. Like if you start preparing for civil services now and you have to appear next year, so you try to do answer writing before January, some answer writing, क्योंकि पहले से थोड़ा प्रिपरेशन होना इज बेटर। तो मैंने भी आंसर राइटिंग करी थी, बट जिस इंटेंसिटी और जितना करना चाहिए था मैंने नहीं की थी, तो इसलिए भी शायद मेरे फर्स्ट मेंस पे इम्पैक्ट हुआ। एंड देन आई रियलाइज दैट आई हैव नॉट डन इनफ ऑफ answer writing, but still I was able to cope up. I wrote a lot of answers copies, whatever possible, in my first attempt, so that I could complete all the GS papers. But I would suggest that if you are preparing now and you are going to appear in next year or next to next year, you should start first. You complete the syllabus, because content is the king. If you don't have the content, तो लिखेंगे क्या? तो सबसे पहले तो you need to have that content कि आपको वो prepare करना होगा। एंड आफ्टर यू हैव इनफ कंटेंट और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो गई है, देन यू स्टार्ट राइटिंग स्लोली स्लोली। इनिशियली ही आप ये मत सोचो कि 10 मार्कर है तो मैं 7 मिनट में लिख ही दूंगा या दूंगी। यू हैव टू फर्स्ट learn to write in whatever time possible. पहले लिखना है, you have to break that hesitation, and once you come into the habit of writing answers, then you will manage your time as well. It's the second part of answer writing. और उसके लिए you have to have that content, and for content you have to decide if you are reading on your own or taking any guidance or anything, but you have to prepare the content beforehand only. And in that also optional, before prelims, if you have to appear next year, you have to make sure that you complete your optional before you I would say till November or December. Your optional should be complete at least with the syllabus, and while doing your syllabus, you keep writing few answers also. Like you should not leave it to the mains time only कि जब प्री हो जाएगा तभी ही लिखेंगे जो लिखेंगे। ये थोड़ा सा बहुत ही रिस्की स्ट्रेटेजी हो जाती है। देयर आर पीपल हु डू दैट वे ऑल्सो, बट देन विल टॉक अबाउट द आइडियल अप्रोच जो हमें करना चाहिए। We can't take so much of risk in terms of writing means. तो आंसर राइटिंग जो है यू हैव टू डू। अब आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए सबसे पहला पार्ट, पहले तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा। एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर ओनली दैट माय सोर्सेज syllabus के लिए was the classroom program that I joined, and then during my mains I did a lot of value addition. That content becomes मतलब थोड़ा पुराना हो जाता है, तो you have to add new things, like you have to add the current affairs, you have to add other value addition things, examples, data, fact, and all in your answers in order to fetch good marks, because you can't afford to write only generic answers, right? So in mains, the essay, GS 1, 2, 3, 4, and optional. These subjects first covered the syllabus. Essay mein there is no as such syllabus. It is only practice. I'll come to that later. But before that, optional I covered. GS ke liye I told you have to decide your sources. Like there are 4-5 subjects in each GS. Like in GS1 you have history, you have geography, you have Indian society,
And history में there are a lot of parts like ancient, medieval, world history, modern history and art and culture. सो GS1 के सारे सब्जेक्ट्स यू अभी इसको करना कैसे है, इवन इफ यू ज्वाइन कोचिंग और इफ यू डू बाय योर ओन, व्हाट शुड बी स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग GSS? आपके पास पहले आपको सिलेबस उठाना है मेंस का. सो द गुड पार्ट अबाउट मेंस इज मेंस का सिलेबस. So the topics in that syllabus are so refined and to the point that you have the road map on how to prepare, क्योंकि prelims में इतना vast होता है. You have environment, you have geography, you have India's history, ऐसे करके topics है. अब वो कितना broad जाएगा we don't know, but in mains syllabus इतना concise होता है that we can prepare it very well. What we have to do is आप मेंस का एक सब्जेक्ट उठाओ, यू पिक अप वन टॉपिक एंड देन यू व्हाट यू डू इज हर टॉपिक का आप 1 पेजर 2 पेजर जितना आपके पास मतलब इतना ज्यादा भी नहीं लिखना है, बट यू हैव टू हैव दैट नोट्स ऑफ टॉपिक वाइज नोट्स फॉर मेंस, ताकि सपोज एंड इनिशियली you can have that notes in detail also, but as you revise you keep on consolidating your notes again and again. इतना करना होगा कि मतलब आपका जिस दिन मेंस और 2 पेपर हो, फर्स्ट पेपर लिखने के बाद सेकंड पेपर में यू हैव 2.5 आवर्स का ब्रेक. उस ब्रेक में आप वो सारे पेजेस पढ़ लो अगले GS2 के लिए. फॉर इंस्टेंस GS2 के लिए पॉलिटी, IR है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है, तो इतना लिखना है कि 2 घंटे में मैं वो सारे पेजेस पढ़ सकूं. एंड दैट टू यू हैव टू हैव दैट टॉपिक वाइज. अब ये आप पहले दिन से नहीं कर सकते हो, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. आपको अगर ये करना है, यू हैव टू पहले आपको डिटेल्ड पढ़ना होगा. यू हैव टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टॉपिक. उसको जितना ब्रॉडली आप पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो, समझ सकते हो, उसको आप बनाओ. एंड देन यू कीप रीडिंग. एक बार नोट्स बन गए, व्हाट आई कॉल्ड एज फाउंडेशन, एक बार आपके एक नोट्स बन गए, नाउ आफ्टर यू कंप्लीट ऑल द सिलेबस, तो आप अपने नोट्स उठाओगे, फिर उसको रिवाइज करोगे. देन यू कुछ चीजें होंगी आपको समझ आ जाएंगी, तो आप उसमें से उसको और शॉर्ट में लिखोगे. फिर एक बार और रिवाइज करोगे, उससे और मतलब कुछ चीजें हमारे हेड में दे गेट व्हाट डू यू से, मतलब एंटर हो जाती है कि इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है. बट कुछ चीजें जो बार बार हम भूल रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट है, कोई डेटा है ना, कोई ईयर है, ऐसा कुछ, या और कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो मैं भूल रहा हूँ. ये नॉर्मल चीज भी हो सकती है विच इज स्लिपिंग माई माइंड, विच इज वेरी पर्सनल टू एवरीबडी. तो आप अगर भूल रहे हो कुछ भी, यू हैव टू ब्रिंग दैट इन योर शॉर्ट नोट्स. या आपको लगना है कि ये मुझे यूज करना है, ये कहीं ना कहीं. सपोज अगर आप सोसाइटी का आंसर लिख रहे हो एंड यू हैव डेटा ऑन अर्बनाइजेशन, या विमेन, आप क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे डेटा है, या फिर आपको चाइल्ड लेबर पे कोई डेटा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पे कोई जो है कितनी चल रही है, ये सारे डेटा है जो हम मेंस में अपने वैल्यू एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं. सो इफ यू वांट टू हैव लास्ट मूवमेंट पे आपको ये चीजें भूल सकती है, तो बाकी अंडरस्टैंडिंग बन गई है, तो विल बी एबल टू राइट कि व्हाट आर द कॉजेस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दैट. तो इसमें जेनरिक आंसर तो सब लिख लेंगे, बट उसको वैल्यू एडिशन कर दिया कि प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या क्या इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट पे आई कैन फॉरगेट, सो दैट आई कैन राइट इन माय शॉर्ट नोट, सो दैट एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले वो सब यू दैट कम्स इन योर मेमोरी. सो व्हाट यू हैव टू डू, टॉपिक वाइज मेंस का नोट्स बनाना है, एंड यू हैव टू कीप रिवाइजिंग, कंसोलिडेटिंग इट. एंड ऑल्सो मेंस के पहले, सपोज अभी आपने प्रिपेयर करके रख लिया, बट जब आपको मेंस लिखना होगा उस टाइम पे कुछ डेटा नया आया होगा, कुछ एग्जाम्पल्स नए आए होंगे, तो दैट यू हैव टू डू वैल्यू एडिशन, राइट. So this way you can prepare your GS subjects. एंड एथिक्स के लिए भी यू हैव टू हैव टॉपिक वाइज नोट्स. मतलब एक एक टॉपिक जो है, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस हो गया, एथिक्स इन गवर्नेंस हो गया, व्हाट इज एथिक्स, या व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, एग्जांपल्स रिलेटेड टू ईच टॉपिक. तो आंसर राइटिंग के लिए इट विल रिक्वायर अ डिफरेंट होल सेशन कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है. बट देन इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल स्ट्रैटेजी, सो टेक आउट द मेंस सिलेबस, हैव अ टॉपिक वाइज नोट्स, and keep revising it, consolidating it, and adding new facts and data which differentiates your answer from others. Don't make it very generic, but don't try to kind of make it so extraordinary कि मतलब एक ही आंसर ही लिख पा रहे हो, बाकी टॉपिक्स. यू हैव टू हैव दैट बैलेंस्ड अप्रोच. लिखना है सब कुछ, एंड
थोड़ा सा एवरेज के ऊपर होना चाहिए. इट्स नॉट दैट कि एकदम सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा तभी मार्क्स मिलेगा. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बैलेंस योरसेल्फ ओनली. वो आप जब लिखना शुरू करेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. तो दिस वे मेंस टॉपिक वाइज नोट्स, एंड देन यू मैप दैट अगेन विद द PYQs, जैसे प्रीलिम्स के लिए किया था. जैसे मैं बताती हूँ, मेंस में आई थिंक 2022 में और 3 में देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन वाटर स्कैरसिटी in GS1, and that question came again in GS1 in 2024. So I did the brainstorming of PYQs. मतलब PYQs मैंने पहले से ही इतनी बार देखे थे और क्या क्वेश्चंस पूछा है उसके अराउंड क्या मैं आंसर लिख सकती हूँ, ऐसा मैंने पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रखा था. दैट व्हेन दैट क्वेश्चन अपीयर्ड in this year's exam again, so I was able to write it very fluently in time, and I would say a decent answer. तो what I would say is that PYQ जो है या तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, PYQ is something that is, if you are missing on that, you are doing a blunder. PYQ के साथ हम बिल्कुल उसको lightly ले ही नहीं सकते हैं. You don't write test, you write PYQs first, and if you don't have the time, PYQ, if you do it properly, is enough. बट वाई वी डू टेस्ट इज टू टैकल द अनसर्टेनिटी, क्योंकि PYQ हम एक बार कर चुके होते हैं, तो एंड वी नो अबाउट दीज क्वेश्चन समवेयर और द अदर, तो वो हमें पता होता है, तो वो हमारे लिखने के चांसेस आराम से ज्यादा होते हैं. बट वेन यू डू इट, when you do the to write the test series, you do it for tackling that uncertainty that can be there. So this way you do for mains, topic wise notes and then PYQ analysis, and you are good to go. After preparing all of this, you should, if you are writing mains, you should write simulated test. मतलब आप जब मेंस लिख रहे होते हैं तो जैसे मेंस का पैटर्न क्या होता है, फर्स्ट डे इज एसे, देन दूसरे दिन GS1 GS2 होता है, देन तीसरे दिन GS3 GS4 होता है, देन यू हैव 5 days का ब्रेक, फिर ऑप्शनल होता है एक दिन में दोनों, और लैंग्वेज पेपर उसके पहले होता है एक दिन में दो. सो व्हाट यू हैव टू डू इज सिमुलेशन टेस्ट, प्रीलिम्स के लिए भी मेंस के लिए भी. तो प्रीलिम्स के लिए आपको सिमुलेशन कैसे करना है, जैसे 9:30 to 11:30 है प्रीलिम्स का एग्जाम. सो यू आर सपोज टू सिट ऑन द टेबल 9:30. ये एग्जाम के एक महीने पहले से आपको करना चाहिए, सो दैट योर माइंड काइंड ऑफ गेट्स इनटू दैट प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग द पेपर. तो उस दिन, पेपर के दिन, इफ यू आर अ पर्सन जो थोड़ा लेट उठते हैं अगर मॉर्निंग में, तो आप उसी रूटीन को अगर फॉलो करते रहोगे तो दैट टाइम योर माइंड में नॉट बी यूज टू दैट थिंग, और उस टाइम पे पेपर आप शायद अच्छे से टैकल ना कर पाओ. योर माइंड इज नॉट गिविंग यू लाइक वर्किंग ऑन द 100% कैपेसिटी. तो उस टाइम उस चीज को टैकल करने के लिए व्हाट यू डू इज यू राइट प्रीलिम्स का पेपर ऑल्सो 9:30 to 11:30, देन यू टेक अ ब्रेक, then you do again 2:30 to 4:30. I used to do this in every prelims, like 3 prelims I wrote. I used to do this exercise at least for 1 month, ताकि मेरा माइंड जो है वो उस टाइम पे सही काम करे. So again, there are people who don't do, they clear also, but this is something that most of the toppers recommend, and I also tried doing this, and I would say this worked for me, and you can try also. I hope this will work for you also. And then mains also, you have to write the simulated test, because we can write, abhi आपको पेपर मिल जाएगा और you don't have any pressure, your body is not exhausted, तो आप लिख दोगे पेपर. मतलब if you are prepared enough, it's not rocket science that can't be done. But doing 4 papers back to back, and writing GS1 for 3 hours, and then after 2 hours of break you have to write again 3 hours, and the next day again 3 hours you have to write, और फिर GS पेपर 4 आते हैं, आई मीन एथिक्स के पेपर तक, you are not only mentally but physically also exhausted. तो वो चीज को टैकल करने के लिए, अगर आप ये पहली बार एग्जाम में ही जाके करेंगे, तो देयर आर चांसेस व्हेन यू गेट दिस फटीग एंड यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर मे बी. तो उस चीज को टैकल करने के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि हम जो वो ना, द लेस वो व्हाट इज द सेइंग दैट द मोर यू ब्लीड ड्यूरिंग प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड ड्यूरिंग वॉर. तो मतलब जितना पहले ही हम अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे उतना अच्छा होगा, in order to perform good in during the exam time. So this was the strategy for mains.
फिर से मैं कंसोलिडेट कर देती हूँ। प्रीलिम्स के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू, प्रीलिम्स या मीन्स दोनों के लिए पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस करो। वंस यू आर डन विद द सिलेबस, what you do is you start consolidating your syllabus, रिवाइज करना है उसको। एंड ड्यूरिंग द रिविजन इटसेल्फ, सपोज एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, रिवाइज कर रहे हैं, पीवाईक्यू साथ साथ करते जा रहे हैं, टॉपिक वाइज करेंगे और अच्छा है। सो व्हाट यू डू, यू सॉल्व द पीवाईक्यूज, and after solving the PYQs, for tackling that randomness, that uncertainty that is attached with the UPSC कि एग्जाम पेपर में क्या आ जाएगा, उस चीज को टैकल करने के लिए what you have to do is you have to solve the test series, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी ऐसे रैंडम होगी, उसके क्वेश्चंस हमें पहले से नहीं पता होंगे, तो इट वुड बी बेटर टू डू दैट बिफोर ओनली। एंड सेम गोज विद द मेंस, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने के बाद यू हैव टू डू पीवाईक्यूज, उसको मैच करना है कि क्या पूछा गया। सपोज ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली हमने, ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली, जो भी उसमें थीम्स दिए हैं मेंस के टॉपिक्स में। आफ्टर डूइंग ज्योग्राफी, what you have to do is अब PYQ उठाओ ज्योग्राफी के, एंड सी कि सपोज साइक्लोन है तो उस पर क्या क्वेश्चन पूछा है, साइक्लोन फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, या कैसे टैकल करे, डिजास्टर मैनेजमेंट से कभी कभी लिंक करके अब तो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपने टॉपिक किया, पीवाईक्यू किया, देख लिया। अब ये सब प्रिपेयर होने के बाद अगर आप मीन्स लिख रहे हैं जब, तब आप सिमुलेटर सॉल्व करिए, उसके पहले आई डोंट थिंक इट्स नीडेड, बिकॉज वो गैप आ जाने के बाद वो प्रैक्टिस, यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूसली। तो जो सिमुलेटेड टेस्ट लिखने की मैं बात कर रही हूँ, वो प्रीलिम्स के जस्ट पहले 9:30 वाला सिमुलेटर करना है, और मेंस के पहले आपको जीएस के सिमुलेटर्स करने हैं, कि मतलब आप 3 दिन लगातार जैसे एग्जाम होता है वैसे एग्जाम दे रहे हैं, एक दिन ऐसे लिख के आ रहे हैं, फिर अगले दिन 2 जीएस लिख रहे हैं, फिर अगले दिन 2 जीएस लिख रहे हैं, 3 दिन वाला ये पैटर्न। फिर ऐसे ही ऑप्शनल की प्रैक्टिस आपको, कि एक दिन में 2 पेपर लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, ताकि आपको वो फटीग ना हो। So this you can do for mains, and sources I already told for prelims. Mains also, since I standard sources prelims के लिए तो mains के लिए भी जो है वो है ही, उसके अलावा you have current affairs during mains, and then what you have to do is CSAT के लिए also I told you टॉपिक वाइज नोट्स बना के फ्रॉम वेयर एवर पॉसिबल, एक एक टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए ताकि वो टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई क्वेश्चन डिविजिबिलिटी टेस्ट पे आ रहा है, तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। एंड ऑल्सो अभी सीसैट में क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई मिस्ड, कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, और क्या लीव करना है ये देखना है। 80 क्वेश्चंस है, यू हैव टू स्कोर जस्ट 67 मार्क्स, एंड फॉर दैट the optimum number of questions that was for me was 50 to 55 के बीच में, मतलब बहुत टफ पेपर है तो 50 रह जाएगा, 51, अदरवाइज 55 56 क्वेश्चन गुड इनफ। अगर उसमें से आप 37 to 40 आई थिंक करेक्ट करते हो, यू विल क्लियर इट अच्छे से। सो सीसेट के लिए यू हैव टू अभी अब उस पर आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से लीव कर रहे हो, दैट यू विल डिसाइड अपनी एप्टीट्यूड पे। आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, किसके क्वेश्चंस आपके सही ज्यादा होते हैं, किसके गलत ज्यादा होते हैं, कौन सा क्वेश्चन क्वेश्चन वो बोलते हैं ना, ईगो पे नहीं लेना है कोई क्वेश्चन। मतलब इफ यू आर गुड इन मैथ्स और कोई क्वेश्चन आ गया और वो सॉल्व नहीं हो रहा है एंड इट्स टेकिंग टाइम, यू लीव इट, you go to the other question. It's not that you have to you don't have to stuck on any single question more than 1 minute अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा। अगर सॉल्व हो रहा है तो you can go little beyond that, but if the if you are stucking in a question, just leave it. So CSAT के लिए this you will learn by solving full length paper, and that for that only I suggested the test series, that you solve the test series and find out कि टॉपिक वाइज करोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि क्या टॉपिक आपका स्ट्रांग है, उसी टॉपिक के क्वेश्चंस पिक करना शुरू करो। एंड और उसके बाद यू चेक व्हाट विच क्वेश्चंस यू आर डूइंग, यू आर गेटिंग रॉन्ग, और वो गलत हो रहा है तो वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने। दिस विल कम आफ्टर प्रैक्टिस ओनली। सो दिस वाज फॉर CSAT। एंड करंट अफेयर्स के लिए आई टोल्ड आई फॉलोड monthly magazine initially, like in my first 2 attempts, but in my 3rd attempt I shifted to PT 365, that is yearly magazine of Vision, and that helped me, like that was also enough because I already had a strong base, and it's not that कि आप अगर newspaper read नहीं कर रहे हैं तो
आप करंट अफेयर्स नहीं जानते हैं. आई यूज टू रीड करंट अफेयर्स ऑन डेली बेसिस हियर एंड देयर, बट इट्स नॉट दैट कि न्यूज़पेपर लेके अंडरलाइनिंग कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ. सो आई हैड दैट फेयर idea of which like what are the topics going on current affairs में क्या चल रहा है. And when I used to study the monthly magazine or yearly magazine, it was very helpful for me that way also. So this was for current affairs. So I think I have covered most of the areas from my part. I'll see if I can. Okay, so I've covered the strategy for prelims. Prelims में GS and CSAT I told. Then mains में mains also I told how to tackle all the GS and then optional. And also essay के लिए. So essay is something जो mostly लोग मतलब थोड़ा lightly भी लेते हैं and they write during the mains only. So essay भी essay का ऐसा है कि when you prepare for this entire exam सारे GS आप पढ़ लेते हो. And there are people who are good at writing, so essay is something that can be tackled during before mains also. What like अब ऐसे के लिए जो डिटेल स्ट्रेटेजी है कि हाउ यू कैन यू हैव टू पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे में देर आर टू टॉपिक्स दैट ऑन विच यू हैव टू राइट द क्वेश्चन. सेक्शन ए में 4 ऐसे होते हैं, सेक्शन बी में 4. फ्रॉम ईच सेक्शन you have to choose one essay and you have to write at least up to 1200 words on each topic. Now how to write that, उसका भी format, introduction, body, conclusion होता है. And उसको expand कैसे करते हैं, so that will again require a detailed strategy अलग से. But if I talk overall strategy, so you just have to, if you are picking a particular point, so what you have to do, you have to bring all the dimensions of that topic. For instance, like if I take any essay topic, happiness is the path, not like I'm not able to recall exactly the topic of that essay that came this year. Not all paths lead to happiness, but happiness is the path. There was something like this. तो basically क्या है कि अभी ये कोई टॉपिक है, दिस इज अ फिलोसॉफिकल टॉपिक. अब इसको आप बहुत ही डायमेंशन में एक्सपैंड कर सकते हो. सो फर्स्ट वे ऑफ एक्सपैंडिंग इट इज you ask the question like what is why happiness is the path, what is happiness, um, how we can be happy in every kind of situation we are in. So essay is something that will require another session of 1 hour where I'll take up few topics and then I'll expand it and with examples and arguments and then tell you like how an essay is supposed to be tackled. So but what I can tell you, if you are a beginner, if you have just started preparing for UPSC, you must focus on the GS syllabus first, and you should focus on since I am a person, जब तक when you couldn't, जब तक आपका prelims clear नहीं होता है, what you are supposed to do is you have to first your focus must be more on prelims. Like this was my personal strategy. I used to have this, that till I don't clear prelims, my focus, my 60 to 70% focus, even during this phase of May to December also, I used to go give more times to prelims, because this is the gateway to enter the exam. If you don't clear prelims, then there's no point of doing all the optional and answer writing and everything. So first focus on covering the syllabus, solve the PYQs, prepare your GS part, and essay something that can be tackled later also. And if required, I'll take a detailed and separate session on essay only. Also, there are questions on how there are questions on interview as well, like what should be the approach during interview. तो the first thing I would like to say is कि अगर आप मेंस तक पहुंच रहे हैं और मेंस क्लियर कर रहे हैं, so you have enough knowledge to tackle
interview as well. You don't have to worry. And the personality is something that is already building. If you are preparing for UPSC, your personality is already uh, in the process to be built like a civil servant. So you don't have to worry about interview for now. But if required, and there are so many strategies and resources available for interview nowadays, so you don't have to worry about that. That is very, I would say, fun part of the preparation, where you get to explore so many things about yourself only. So there is no particular strategy for interview as such, but there are a lot of guidance available, which you can have when you'll give interview. You'll have enough time. You can prepare then. And regarding personality, so there is a very important part which we mentioned in section 7 of the DAF 2, that is hobby part. तो लास्ट टाइम पे जब हम डैफ 2 भर रहे होते हैं तो सब बहुत कंफ्यूज होते हैं कि क्या हॉबी लिखे. लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन इज सच देयर वेयर यू कैन नॉट परस्यू एनी हॉबी. So in order to be free from that part, you can have an hobby. और हॉबी ऐसी वो जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए. जो हमें एक्चुअल में वी लाइक टू डू, वी शुड कीप डूइंग दैट अ बिट जब भी थोड़ा टाइम मिल जाए, ताकि जब लास्ट में इंटरव्यू देना हो तो आपको हॉबी सोचनी ना पड़े, जनरेट ना करनी पड़े. सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर डैफ टू. वो इंटरव्यू के पहले दैट विल बी डिस्कस लेटर. आई थिंक राइट नाउ द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्रीलिम्स एंड मेंस. And I think I have discussed most of the points that I wanted to. Now I'll take the questions, whatever questions are there, and I'll try to address them. My motivation behind UPSC is my grandparents and my parents only. Like, this was a part of psyche, my psyche since childhood. I have been in a family. तो मेरा मोटिवेशन वहीं से था. एंड व्हेन आई ग्रू अप, आई एक्सप्लोर्ड द अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज. आई फाउंड दैट सिविल सर्विसेज इज समथिंग दैट विल गिव मी job satisfaction. And I'll I'll be happier to work here. And also, civil services is such a exam which everyone in the country wants to give and clear. So the motivation behind me was personal and then later professional also. So I decided to pursue it. Prelims की strategy मैंने share कर दी है. Syllabus properly complete करने में it took me I think 1.5 year to complete the syllabus properly. I'm talking about prelims, mains and optional, all of them. मंथली मैगजीन में करंट अफेयर्स अगर आप करें मंथली मैगजीन से, तो सारे इश्यूज रिमेंबर करना. मतलब जब आप पढ़ते हो मंथली मैगजीन, तो वो आपको सब कुछ रिमेंबर नहीं करना. यू हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स. सब कुछ एक रोट लर्निंग नहीं करनी है यहाँ पे, वरना तो आपको बहुत बल्कि लगेगी. आपको बस समझना है कि सपोज कोई बिल आया है तो उसके क्या क्या प्रोज है, कौन से हैं. फॉर इंस्टेंस अभी नारी शक्ति वंदन है, 106th अमेंडमेंट है, तो उसमें क्या क्या उसके फीचर्स हैं, क्या क्या उसमें पॉजिटिव्स हैं, क्या क्या और चीजें हो सकती हैं, या फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस अगर हम कर रहे हैं. तो वो आपको रटने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू जस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग. और वो आप एक रीडिंग में सब कुछ समझ भी नहीं सकते. आपको ये भी चीजें याद नहीं होगी. यू हैव टू गिव इट 2-3 टाइम्स ऑफ रिविजन, तब वो आपको याद करने में आसानी होगी. इकोनॉमिक में आई फॉलोड क्लास नोट्स ऑफ विभास झा सर, जहाँ से मैंने फाउंडेशन किया था. मैंने वो क्लास नोट्स किए थे, प्लस बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आर समथिंग दैट आर you can't miss on them, that are very very important. PYQs, last 10 years PYQs is the minimum that you should do. आपके पास अगर टाइम है एंड यू कैन डू, यू शुड गो. उसके पहले भी 15 years 20 years जितना कर सको आप अच्छा है, बट 10 years इज तो मिनिमम यू हैव टू डू.
Number of hours are, 8 hours is something that I used to dedicate for studies, because वो जो concentrated study है, जो complete आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं. It's not that you're बुक खोल के बैठे, या फिर आप अगर सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, आप काउंट कर रहे हैं कि आप 12 hours पढ़ रहे हैं, तो वैसा वाला नहीं. पूरा पढ़ने का अगर 8 hours यूज टू बी मैक्सिमम फॉर मी. हाँ, मतलब मेंस बहुत पास है, तो मे बी समटाइम्स इट कैन गो ऑन 9 to 10, बट 8 hours इज द एवरेज आई यूज टू स्टडी. Yes, I have done my graduation from GLA University, Mathura. If you have to just, if you are taking computer science and you have just started your college, I don't think you should start preparing for civil services shuru se hi. You should first explore your subject that you are taking. Usko padhiye, usko samajhiye. You explore other activities in your college, build your personality. I won't suggest that after working so hard and giving JE and clearing it and taking a college, you start preparing for UPSC from first year itself. I wouldn't say it's a very good decision. I think first we should focus on what we how we why we choose computer science. मतलब किसी वजह से ही जेई चूज किया होगा, आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, तभी चूज किया होगा, तभी आपने क्लियर किया, एंड नाउ यू वांट टू now you are entering the college and going to do 4 years of graduation. तो इनिशियली ऐसा नहीं है कि आप शुरू से यूपीएससी में लग जाओ अभी. आई वोंट सजेस्ट दैट. फर्स्ट यू शुड फोकस ऑन योर कॉलेज पर्सनालिटी. यू टॉक अबाउट द पर्सनालिटी टेस्ट, दैट इज पीपल कॉल इट इंटरव्यू. वो उस टाइम वो इंटरव्यू क्या होता है, व्हेन यू रीच दैट स्टेज एंड यू मीट विद पीपल, you'll find people with so much of डाइवर्सिटी और इतने सारे अचीवमेंट्स होते हैं उनके. लाइक दे डू सो मेनी थिंग्स इन देयर कॉलेज दैट दे डोंट हैव टू बिल्ड दैट पर्सनैलिटी इन द एंड. और वो पर्सनैलिटी कैसे बनती है? वो आपके स्कूल कॉलेज से ही बनती है. इफ यू मिस ऑन दैट एंड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी विच इज आइडियली 1.5 to 2 years में भी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. देयर आर पीपल हु आर क्लियरिंग इट ऑल्सो. बट तो आप जो चीज इतने टाइम में भी कर सकते हो, उसके लिए आप फर्स्ट ईयर से टाइम दो, एंड यू विल एनीवेज विल अपीयर इन द फाइनल ईयर ऑफ योर कॉलेज ओनली. तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. आई थिंक यू शुड गिव टाइम टू योर ग्रेजुएशन फर्स्ट. उसको पढ़िए, उसको एक्सप्लोर करिए, एंड लेटर इफ यू डोंट फाइंड यू फाइंड कि आपकी जो भी हैप्पीनेस है और सेटिस्फैक्शन है वो यूपीएससी में है, तब आप उसमें जाइए. दैट वुड बी अ बेटर आइडिया, आई वुड से. Do not compromise on your graduation for UPSC. अब पीवाईक्यू कैसे एनालाइज करना चाहिए? दिस ये तो आपको पीवाईक्यूज दिखा के बताना पड़ेगा, बट देर आर सो मेनी वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल वेयर पीवाईक्यू एनालिसिस इज देयर. राहुल सर है ISPC's पाठशाला पे. He has done a very good analysis of PYQs. And then there are other teachers as well. You just search the PYQ analysis of UPSC theme based, you'll find that on YouTube. So many people have done that. If I have to do this, I'll have to take another session जहाँ पे PYQs मैं करके बताऊँ आपको analysis की कैसे करना चाहिए. But there are sources available, you can reach on them. आइडियली तो प्रीलिम्स के पहले आपको पूरा ही सिलेबस मेंस का प्रिपेयर कर लेना चाहिए. मतलब अगर एक दो टाइम, वैसे भी यू आर सीइंग सो, मतलब इतना कम टाइम हो रहा है, मतलब 3 महीने से भी कम टाइम होता जा रहा है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में. अगर ज्यादा टाइम होता तो आई वुड से कि मतलब कुछ छोटे सब्जेक्ट्स है जैसे इंडियन सोसाइटी हो गई या डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये सब यू कैन प्रिपेयर इन बिटवीन ऑल्सो. बट राइट नाउ द आइडियल, एज यू आस्क्ड कि आइडियली प्रीलिम्स के पहले ही कितना प्रिपेयर होना चाहिए, तो प्रीलिम्स के पहले सिलेबस तो आई थिंक पूरा ही प्रिपेयर होना चाहिए. उसके बाद आप जो टाइम बचता है ना, आइडियली उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग और रिवीजन करना चाहिए. देन यू विल बी एबल टू स्कोर गुड. क्वांट की बेस्ट बुक
बुक तो आई हैवंट सॉल्व्ड एज सच, इसके लिए यू हैव टू ask someone else. I can't recommend any such book for quants. How many months enough for complete syllabus properly? I think, as I said, 1 to 1.5 year I took. लोग कम भी ले सकते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, या फिर कैसे आप कर रहे हो, खुद से कर रहे हो सेल्फ पेस पे, या फिर यू आर टेकिंग एनी अदर गाइडेंस, तो उस पे डिपेंड करता है, और इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है. Uh, if you're writing UPPSC and BPSC both, then you must be studying it पहले से ही. तो you have to just you know make a proper timetable. And अभी which subjects which subjects आर देयर, और आपके सब्जेक्ट्स कौन से प्रिपेयर्ड है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, किससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से आप टाइम टेबल बना लो एंड यू स्टार्ट लाइक यू प्रिपेयर दैट. And I don't have a very good idea of state exams, so I think I won't be able to guide for that. But again, as I said, Rahul sir on ISPC's Pathshala, he is very very good at guiding aspirants on the state exams as well, so you can follow him, he'll suggest you something. थीम्स कैसे रिपीट होते हैं, फॉर दैट आई हैव टू टेक द जस्ट अ सेकंड. या फॉर थीम्स, अगेन एज आई सेड, एक एग्जांपल मैंने बताया बुद्धिज्म जैनिज्म का, जिस पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. उसे उसमें आप देखोगे हर ईयर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आता ही आता है. फिर उसके बाद अगर मिडिवल हिस्ट्री में आप देखोगे विजयनगर एम्पायर पे, देयर आर क्वेश्चंस ऑन विजयनगर एम्पायर मोस्टली. आपको ये खुद एनालाइज करना पड़ेगा. सपोज आप टॉपिक वाइज उठाओ, पॉलिटी पे ले लेते हैं अगर, तो आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन आता ही आता है. देन पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस एक दो आएंगे ही आएंगे. तो इसी को थीम्स बोलते हैं. अब फॉर इंस्टेंस, अब अगर आप पॉलिटी को ही लेते हो, तो जरूरी नहीं है कि सेंटर स्टेट पे या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पे क्वेश्चंस इतना ज्यादा आए, बट पार्लियामेंट पे क्वेश्चंस एक दो आएंगे ही आएंगे. तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं विच फेच मोर क्वेश्चंस, इन टर्न फेच यू मोर मार्क्स, एंड देन दे आर सपोज टू बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस कंपेयर टू अदर. अगर इसको समझाना होगा तो अगेन आई हैव टू टेक अनदर स्ट्रेटजी, बिकॉज वो सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ क्लब करके दिखाना होगा कि सी दीज क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी अगेन एंड अगेन, एंड दिस हैज बीन डन बाय अ लॉट ऑफ people who have cleared the exam on YouTube, so you can go and understand that from there. मेरे पास सारे टॉपिक्स के कंटेंट होते थे जो मेंशन्ड है, और अगर कोई क्वेश्चंस रैंडम आ जाते थे तो सब इसी से डरते हैं, मतलब अगर ये पूछ दिया तो क्या करेंगे. तो पॉइंट ये है ना कि आप जब पढ़ते हो तो ये तो 100% है कि 20 क्वेश्चंस, अगर मेंस की मैं बात करूं तो 20 क्वेश्चंस में से आपको 20 के 20 सारे आएंगे नहीं. देयर विल बी 2-3 क्वेश्चंस जो बिल्कुल ही नहीं आते, यू जस्ट हैव. तो उसमें आपको पेरिफेरल आइडिया लगा के सोचना पड़ता है कि अच्छा ये हो सकता है. मतलब यू कैन लिंक, फॉर इंस्टेंस अभी इस ईयर के मेंस 2024 के मेंस में देयर वाज अ क्वेश्चन कॉल्ड डेमोग्राफिक विंटर. अब डेमोग्राफिक विंटर कहीं पे भी नहीं पढ़ा था, किसी ने नहीं सुना था, बट देन somehow I realized कि ये एजिंग पॉपुलेशन एक इशू है, तो मे बी डेमोग्राफिक विंटर इज रिलेटेड समथिंग विद दैट, और ऐसा करके रिलेशन बना के आई रोट दैट आंसर. एंड लेटर आई फाउंड कि, और ये जो एप्टीट्यूड बना था वो शायद पढ़ने की वजह से, यू स्टडी फॉर सो लॉन्ग और इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं हम, स्टैटिक पढ़ेंगे, स्टैटिक बुक्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो इतना कुछ पढ़ते पढ़ते ना यू जस्ट हैव दैट इंस्टिंक्ट. जैसे प्रीलिम्स में भी आपको नहीं लगता कि कोई एक बार प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है और वो 5 बार 6 बार, मतलब जितना अटेम्प्ट है सब में प्रीलिम्स क्लियर कर ही रहा है. सो हाउ इज दैट हैपनिंग? बिकॉज दैट पर्सन हैज दैट इंस्टिंक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम, द क्वेश्चंस. पढ़ते पढ़ते वो समझ बन जाती है इंसान की, और वो आपके कहीं पे भी सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ होता है, एंड यू थिंक एंड
वो सही हो जाता है। अब इसको तुक्का नहीं बोलेंगे, इसको आप क्या बोले जाए, एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है ना, तो यू आर एबल टू गेस प्रॉपरली, तो वो रैंडम क्वेश्चंस भी आप टैकल कर लेते हो। दिस यू विल एबल टू हैंडल इफ यू प्रिपेयर ऑल ऑफ दैट। अभी जो लिखा हुआ है अगर, और वैसे भी यू सी द मार्क्स 250 मार्क्स होते हैं, बट हाईएस्ट कितने जाते हैं 120 130, मतलब मैं नॉर्मल जीएस की बात कर रही हूँ, वेरी करता है। तो वो उतने ही मार्क्स क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स सारे क्वेश्चंस अगर हम वैसे ही लिखेंगे, सारे आने वाले ही क्वेश्चंस होंगे कि हमको सब आते हैं, तो मार्क्स भी तो बहुत ज्यादा आएंगे ना। देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच यू हैव टू टैकल विथ यू नो स्मार्टली, कि मतलब आप लिख भी दें और कुछ ऐसा ना लिखे जो फैक्चुअली इनकरेक्ट हो, बट ऐसा भी ना हो कि वो क्वेश्चन छूट जाए। 2028 का प्लान थोड़ा लंबा है, सो उसके लिए तो यू हैव टू लाइक 2028 इट्स 3 years, सो फर्स्ट तो यू फोकस ऑन कंप्लीटिंग द सिलेबस, और आप डिटेल में सिलेबस कंप्लीट करिए, उसके वो ही करने में इट विल टेक टाइम फॉर यू। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस वही पीवाईक्यूज करिए, रिवाइज करिए। और अभी अगर आपको 2028 में देना है, तो आपके पास एक एडवांटेज है दैट यू डोंट हैव टू डू द करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली। तो फर्स्ट यू फोकस ऑन स्टैटिक, उसके प्री और मेंस, और मेंस में ऑप्शनल इंक्लूडेड, यू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस फर्स्ट, and then you go on to do the revision, consolidation and everything. And 1 year 1.5 year का current affairs आता है, so 2026 दिसंबर से या फिर 2027 से भी आप करंट अफेयर्स पे फोकस करना स्टार्ट करो। ये समझने के लिए कि आपको यूपीएससी का करना है कि बीपीएससी का प्रिपरेशन करना है, पहले आपको दोनों के सिलेबस, दोनों का पेपर, अपना एप्टीट्यूड और वो सब देख के यू हैव टू डिसाइड, दिस इज योर पर्सनल कॉल। तो ये तो रिसर्च आपको ही करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पहले क्या देना है और कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मतलब जो मैंने फॉलो की थी, आई यूज टू सॉल्व विजन का टेस्ट एंड नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट आई यूज टू सॉल्व, और उसके बाद एंड में कुछ वाजीराम के फुल लेंथ टेस्ट। तो मैं रैंडम, मतलब मैं 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सॉल्व करती थी इन ऑर्डर टू अभी आपका माइंड है ना, आप एक टाइप का टेस्ट सॉल्व करते हैं तो उसी के हिसाब के क्वेश्चंस के लिए ट्रेन हो जाता है, तो यू डोंट हैव टू वो वाला आपको एल्गोरिदम माइंड में सेट नहीं होने देना, यू हैव टू हैव दैट हैबिट ऑफ टैकलिंग अनसर्टेनिटी, और थोड़ा वेराइटी ऑफ नॉलेज भी हो जाता है। तो इसलिए आई यूज टू सॉल्व विजन, वाजीराम एंड नेक्स्ट, और उसके अलावा एनी टेस्ट सीरीज कैन बी सॉल्व, फोरम आईएएस का आल्सो इज वेरी गुड, सो यू कैन सॉल्व एनी ऑफ देम। एंड मीन्स के लिए तो आई गेव नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज ओनली, नथिंग एल्स। Why UPSC? I told first childhood dream for me, and then other opportunities I explored, and I found it to be the best one for me. So I decided ki I will go for this. मिस्टेक्स मेरी तो सबसे पहले पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं करने की थी, जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल नहीं की। आई जस्ट फोकस्ड ऑन शैलो अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम पे, बट लेटर आई इम्प्रूव्ड ऑन दैट। मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाज आल्सो गुड। मॉक इंटरव्यू और यूपीएससी के इंटरव्यू में डिफरेंस होता है। कुछ कुछ मॉक्स होते हैं विच आर वेरी सिमिलर टू यूपीएससी ओनली, मतलब वो आपको बहुत ज्यादा ग्रिल नहीं करते हैं, बट आई वुड से दैट यूपीएससी का इंटरव्यू वाज what I would say is more comfortable than the mock interviews. Like in mock, you are questioned so much that you get sometimes scared, you are grilled sometimes, and questions are very random, and you don't imagine कि ऐसा भी पूछ सकते हैं, but यूपीएससी में questions are very straightforward, and the board is very cordial, so that way I think my experience for the UPSC interview was better than mock. I used to follow the current affair magazine of Vajiram, the recitals. I used to follow that.
बट इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल. आप एक दो मैगजीन्स अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हो तो पढ़ के देखो कि आपको कौन सा फॉर्मेट अच्छा लगता है. आई फॉलोड वॉज द रिसाइटल्स ऑफ वाजीराम. In order to how to read a spectrum is first, if you don't understand, like first, so you have to skim through lines only. Like first, go get one quick reading of the book, understand कि क्या था, क्या chronology थी, कैसे चल रहा है सब कुछ. और अगर आपको मतलब एकदम ही फोकस्ड वाली पढ़नी है तो PYQs के साथ करो आप. यू टेक द PYQs. उसमें एक गो थ्रू कर लो टॉपिक वाइज. सी टॉपिक वाइज PYQs प्रीलिम्स के लिए ना अपने पास हमेशा रखने चाहिए, क्योंकि आप देखोगे सपोज स्पेक्ट्रम की बात करूं, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की बात करती हूँ. सो व्हाट यू विल फाइंड इज कि जो कुछ पार्ट होता है उसका, जैसे सपोज दिस एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पावर ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, उसमें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, देन हाउ दे कंसोलिडेटेड एंड एक्सपैंडेड, ये सब सारे बैटल्स जो भी उन्होंने किए थे उनसे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होंगे. फिर आप आओगे कट्टू, अगर बाद में मतलब जब गांधीन फेज में आ जाते हो तो गांधीन फेज में देखोगे आप बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. उसके बाद आप देखोगे रिवॉल्ट से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. तो कुछ एरियाज होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आएंगे, आते ही आते हैं, और एक दो आते हैं. जैसे गांधीन फेज से तो मतलब क्वेश्चंस आते ही आते हैं. फिर यू हैव सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, उससे भी क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं. तो ऐसे आप क्या करो, पहले जब नहीं समझ में आया ना कि बस पढ़ रहा हूँ इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, ये चीज अगर आपको नहीं समझ आती है तो व्हाट यू डू इज यू सी द PYQs. क्वेश्चंस देखो कि क्या पूछ रहा है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन ज्यादा. और टॉपिक वाइज देखोगे तो देखोगे एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन है पिछले 10 साल में, और एक टॉपिक से सिर्फ 5 क्वेश्चन है पिछले 10 साल में. तो वेटेज किसको ज्यादा देना है, जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं सेम पीरियड ऑफ टाइम में. और दिस इज हाउ यू फर्स्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस. वंस यू गो थ्रू द क्वेश्चंस यू नो दैट दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट. मतलब अगर कुकी रिवॉल्ट पे आ गया है, संथाल रिबिलियन पे क्वेश्चन आ गया है, तो इससे आपको क्या समझ आना चाहिए कि वो रिवॉल्ट सारे मोस्टली इंपॉर्टेंट है. अब उन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उनके लीडर का नाम पूछ रहा है, या उनका ईयर क्रोनोलॉजी में पूछ रहा है कि इसको अरेंज करे, या मैच द फॉलोइंग कैसा पूछ रहा है. तो जिस पैटर्न का क्वेश्चन है उस तरह से बुक को पढ़नी है. This you will decide. If you don't understand how to study a particular subject, you just go through the PYQs and you get an understanding कि कैसे करना है. Okay, how to memorize and revise what we study. इसके लिए तो आपको पहले सपोज, अब मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब मेमोराइज करने की, रिवाइज, पहले आप एक रीडिंग लगाते हो, अंडरस्टैंडिंग बनती है, देन यू रीड इट अगेन. अब उसको याद करने के लिए आई यूज टू डिस्कस विद पीपल, मतलब अपने फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से भी जिससे आप, पीयर ग्रुप है अगर आपका, तो आप उनसे डिस्कस करो. ठीक है, उनसे आप उसको डिस्कस, जितना डिस्कशन करोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, या खुद से डिस्कस करो, बोल बोल के पढ़ो, देन यू विल एबल टू, अपने आप को पढ़ाओ तो थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, वो चीजें याद होंगी. फिर उसके बाद जब लगे कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो. ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स पहली रीडिंग करी पूरी, फिर दूसरी रीडिंग में फिर से अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बढ़ाई, थोड़ा बोल के पढ़ा, याद करने की कोशिश की. तीसरी रीडिंग में थोड़ा उसको, उसके शॉर्ट नोट बनाना स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, अगली बार पढ़ेंगे तो शॉर्ट नोट को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे उस शॉर्ट नोट को एक बार, दो बार, तो और बहुत चीजें याद हो जाएंगी, फिर उसको और छोटा कर सकते हैं हम. तो दिस वे यू कैन यू विल मेमोर, मतलब इतना ज्यादा उसको पढ़ो कि चीजें याद हो जाए. हम, ये उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय देते हैं. Right time to start the preparation for UPSC. I would suggest, मतलब अगर आपको यूपीएससी, आप इफ यू आर इन कॉलेज, तो आई वुड सजेस्ट, इफ यू हैव डिसाइडेड कि यूपीएससी करना है तो फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज आई थिंक यू कैन स्टार्ट. इंटरव्यू के लिए सॉरी, if you don't know, you just simply say, sir, sorry sir, I'm not able to recall it right now, I'll read it. or sorry sir, I don't know, simply you can say. ऐसे के लिए कंटेंट, एज आई सेड, आप जीएस पढ़ोगे तो यू हैव इनफ कंटेंट. और कंटेंट मिलता है ना व्हेन यू हैव दिस हैबिट ऑफ रीडिंग. जैसे कि
यहाँ पे न्यूज़पेपर रीड करना हेल्प करता है. सो इफ यू आर रीडिंग एडिटोरियल्स, इफ यू आर रीडिंग बुक्स, देयर आर पीपल हु आर फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, उनकी रीडिंग हॉबी होती है. तो वो रीडिंग की वजह से दे हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट समटाइम्स. मतलब ऐसा है कि आप कहीं से भी कंटेंट उसमें डाल सकते हो. रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए उस टॉपिक से. मूवी का कोई मूवी का छोटा क्लिप कोई ऐसा आपको याद आ रहा है विच वॉज वेरी मोटिवेटिंग और ऐसा कुछ, तो वो लिख सकते हो आप. कोट कोई याद आ रहा है, आप वो लिख सकते हो. मतलब ऐसे समथिंग जो बहुत वास्ट है, और उसमें आपको आपके जीवन में जो भी आपने पढ़ा है, जो भी सीखा है, यू कैन ऐड दैट. तो ऐसे के लिए कंटेंट ऐसे मिल सकता है आपको. यू हैव टू जस्ट रीड एज मच एज यू कैन. In DAF, your POR is blank. Does it affect actual interview? I don't think so. You just have to answer. You'll be asked other questions if POR is blank. Book list I have already told. You can revisit the video and see. I read only Spectrum. If you can read 12th NCERT Bipin Chandra. Since I have not read that, तो मैं compare नहीं कर सकती. But I read Spectrum and that was sufficient for me. So you can go for that also if you feel like. और समय ज़्यादा है तो you can do both of them. GS2 के लिए नोट्स, अगर आप मेंस की बात कर रहे हो, तो GS2 का सिलेबस है मेंस में, प्रॉपर टॉपिक वाइज सिलेबस है. आप एक एक टॉपिक पिक करिए. उसके इंट्रोडक्शन में सपोज जुडिशियरी है या फिर गवर्नर है, तो अब गवर्नर का इंट्रो कोई भी क्वेश्चन आता है गवर्नर से, तो यू कैन राइट द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो विच टॉक्स अबाउट द पावर्स ऑफ गवर्नर, और ऐसा कुछ. या फिर जुडिशरी का क्वेश्चन है, कोई PIL से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपने इंट्रो में उसका आर्टिकल लिख सकते हैं. तो जो GS2 का मेंस का सिलेबस है, उसके जो टॉपिक्स है ना, उन टॉपिक्स का जो इंट्रो आप बना सकते हो, वो इंट्रो लिखो. जैसे सेपरेशन ऑफ पावर, आर्टिकल 50 में बात करते हैं हम सेपरेशन ऑफ पावर की. तो सेपरेशन ऑफ पावर में जो भी क्वेश्चन है, यू कैन स्टार्ट विद द आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर. तो इस तरह से आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ. फिर उस सेपरेशन ऑफ पावर के लिए क्या क्या मतलब बेनिफिट्स हैं, क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो भी आप बना सकते हो नोट्स उससे रिलेटेड. यू कैन मेक दोज नोट्स. सिटीजनशिप के क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं, अब ऐसे हम आउटराइटली नहीं बोल सकते कि क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं. आप यू सी द सिलेबस. इफ सिटीजनशिप इज द टॉपिक, तो आप उस पर नोट्स बनाओ. इफ इट्स नॉट इन द टॉपिक, एंड अगर करंट अफेयर्स में कुछ ऐसा चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा, तो दैट यू विल गेट टू नो एनीवेज इन द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन. I am not sure about online mode of test series, but all the tests are available online as well. So, as I mentioned earlier, tests you can solve them online as well. इकोनॉमी के लिए मेरी कोई बुक लिस्ट नहीं थी. एज सच आई रेड द नोट्स एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे प्री और मीन्स दोनों के लिए. आई डिड नॉट रीड एनी बुक, बट करंट अफेयर्स के लिए इज समथिंग की, मतलब एक आइडियल अप्रोच क्या है कि डेली न्यूज़पेपर आप 1-1.5 घंटे में यू गो थ्रू दैट, एंड बट नोट्स नहीं बनाना है. आई वोंट रिकमेंड न्यूज़पेपर के नोट्स पढ़ना, वरना वो फिर आपका पूरा टाइम चला जाएगा, एंड दैट विल, उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है ना, वो अच्छा नहीं होगा. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट हैव गो थ्रू, you just have a quick go through of the newspaper, and then after that you can have the monthly magazines. और मंथ के एंड में आप जो भी मतलब मंथली मैगजीन आती है इस मंथ की, आप उसको पढ़ते रहो. और बस यू हैव टू मेक श्योर कि आप रिवाइज करो मंथली मैगजीन को. ठीक है. नोट्स जो है आपके पूरे मंथ के, अगर आप देखो, ये बहुत इजी हो जाता है. अगर न्यूज़पेपर रीड करें तो हमको सब कुछ पता है. अब वही चीज जो हमें पता है वो डिटेल्ड में रोज आ रही है पेपर में, 1-2 दिन 3 दिन तक वो न्यूज चल रही है. मंथली मैगजीन में उसको कंसोलिडेट करके लिख देता है. तो ऑलरेडी मंथली मैगजीन इज योर सेकंड रिविजन, राइट. अब वो आप एक बार पढ़ोगे तो वो ऑलरेडी आपका सेकंड टाइम का करंट अफेयर्स होगा. फिर उसको और भी पढ़ लेंगे,
एक दो बार, तो दैट विल बी आई थिंक इनफ टू रिमेम्बर. I told about my optional strategy, that was anthropology, and how I approached it was I took a foundation course online only. But that was not good enough. I think I, I like that I couldn't have that proper understanding of optional back then. But when I have had to write my mains, तो उस टाइम पे मैंने टॉपर नोट्स लिए थे मंदार पत्की सर के एंड इग्नू के मटेरियल से. आई स्टडीड ऑप्शनल, उससे मैंने अपने टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, मतलब सिलेबस के हर टॉपिक के नोट्स बनाए थे. एंड आई ट्राइड टू लाइक, इफ आई टॉक अबाउट द मिस्टेक, तो ये मिस्टेक मैंने ऑप्शनल में भी करी है. फर्स्ट मेंस में, विच वाज इन 2023, आई डिड नॉट राइट, I did not solve the PYQs. I did the content, सब कुछ मैंने किया, and then I tried writing the test. टेस्ट सीरीज ली थी मैंने, उस वो लिखने की कोशिश की. दैट टू ऑल्सो आई कुडंट डू प्रॉपरली. तो थोड़ा मेरा इशू था फर्स्ट मेंस में, बट इन सेकेंड मेंस माय स्ट्रेटजी वाज वेरी सॉर्टेड. लाइक आई टुक द टेस्ट सीरीज ऑफ लेवल अप फॉर एंथ्रोपोलॉजी, एंड उसमें मैं क्या करती थी, आई यूज टू रीड माई कंटेंट, देन आई यूज टू राइट द सेक्शनल टेस्ट, देन आई यूज टू वॉच द सोल्यूशन वीडियोज एंड मेक नोट आउट ऑफ दैट. और फिर मैं उसको रिवाइज करती थी, बहुत बार अपने फ्रेंड से डिस्कस करती थी. सो दिस वे आई डिड माई ऑप्शनल. Yeah, you can prepare for UPSC after MBBS as well. Of course, in normal, there is nothing abnormal or extraordinary in the people who clear this exam. This is a myth. Anybody can clear this exam provided you do, you study, you work hard, and you work, in a right manner. Your strategy should be correct. You work hard, you will be able to clear. There is nothing called ordinary or extraordinary in the people who clear or not clear. You can clear this exam anyways. Yeah, I replied that you can do UPSC after MBBS as well. There's no issue in that. I had my notes of Vibhas Jha sir of economics. मैंने वही notes पढ़े थे. For next year prelims, I won't appear because I'll be in training, so I can't appear. Quant ki book, I haven't solved any book as such. I have done it through YouTube online, and if you want, you can. For UPSC particularly, I would suggest to solve the PYQs of UPSC only. और उसमें कॉन्सेप्ट्स के लिए अगर आपको चाहिए कि मतलब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है या फिर प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज, ये सब कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप कोई भी परसेंटेज का एक वीडियो उठाइए जो किसी भी टीचर ने पढ़ाया हो. जैसे नेक्स्ट आईएएस में मंजुल तिवारी सर इज देयर हु टीचेस क्वांट, एंड आई फॉलोड हिज लेक्चर्स, so that were very helpful for me. So you can go through that. Any other book I'm not aware of for now, so I can't suggest that. YouTube channel. See, abhi to as such I did not follow any particular channel. Yeah, geography mapping part के लिए I followed Sudarshan Gurjar sir. And ISPC's Pathshala I followed, where sir used to, वो मतलब there were not any particular subject videos, but there were few content that these people used to teach, और वो मैं पढ़ती थी. But I cannot suggest channel पर से, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है ऐसा कुछ. वन पेजर नोट्स बनाने के लिए यू हैव टू फर्स्ट हैव योर डिटेल नोट्स. उसको रिवाइज करते करते ना आप वन पेजर नोट्स तक रीच करेंगे. मतलब दिस इज समथिंग, वो भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. फॉर इंस्टेंस सपोज करिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो अब पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स यू रीड,
अब उसमें पूरे 32 आर्टिकल्स तक डिटेल में पढ़ोगे आप कि आर्टिकल 14 है या राइट टू इक्वालिटी में दो पार्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन बाय लॉ एंड ऑल। तो आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो दीज थिंग्स आर इन डिटेल, बट आपको मतलब एंड में रिवाइज करने के लिए यू जस्ट हैव टू हैव दिस कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है, देन आर्टिकल 2 3 ऐसे करके आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इसके दो पार्ट्स हैं, दैट्स इट। तो इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। वो शॉर्ट नोट्स मतलब ये है कि आपको बस हिंट्स लिखने हैं उन नोट्स में, जिससे देख के आपको पूरी कहानी याद आ जाए। इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेलर फॉर अ मूवी। प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी मैंने स्टार्टिंग में शेयर की है, यू कैन रीविजिट द वीडियो आफ्टर इट इज अपलोडेड, और उसमें से आप देख सकते हो। के लिए टेस्ट कितने लगाए प्रीलिम्स के लिए? आई यूज टू सॉल्व एटलीस्ट 40 to 45 टेस्ट टेस्ट सीरीज का, अपार्ट फ्रॉम 10 years of PYQs. I think this is enough for today. I have almost addressed all the queries. Uh, so I'll be ending this session here for now. I wish all of you a very best of luck. Monthly magazine se I never made short notes. PT se I used to make short notes. Yeah, so I think I would end this session here. Thank you so much for being here, and I wish all of you a very best of luck. Thank you.